Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of Social Studies. Yesterday we have started our civics chapter number 6. So today we are going to continue with the same chapter. And today's topic is maintenance of land record. Yesterday we have seen the story of Mohan and Raghu, that Mohan was beaten up by the Raghu. रघु ने उसकी ज़मीन ले ली थी, ज़्यादा ले ली थी, और किस तरीके से वो लोग SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास गए थे और अपनी कंप्लेन लिखवाई थी, फाइल करवाई थी. नाउ वी विल स्टडी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. This is important, student. You have to understand it very properly. You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of the field had been shifted. Is it not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that show who owns that what lands in the village? Let's find out how this is done. क्या इनके पास कोई तरीका नहीं है कि किसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, किसकी कितनी बाउंड्री है? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पता लगाएंगे. Measuring land and keeping land record is the main work of पटवारी. अंडरलाइन दिस स्टूडेंट. लैंड को मेजर करना और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? पटवारी का. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. इन सम विलेजेस such officers are called लेखपाल, in other कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा. मतलब पटवारी को अलग अलग नेम से कॉल किया जाता है, लाइक लेखपाल और वी कैन से कानूनगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर. इनके ये these all are the names of पटवारी, different names of पटवारी. We will refer to this officer as पटवारी. हम यहाँ पे पटवारी ही नेम बोलेंगे. Each पटवारी is responsible for a group of villages. हर एक पटवारी अपने ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे गांव, फिर उस गांव की देखभाल वो एक पटवारी करेगा. जितने भी लैंड है उन गाँव की वो सब पटवारी मेंटेन करेगा. तो मतलब एक पटवारी के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं. The Patwari maintains and updates the record of village. The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the record kept by Patwari. अब हम next page पे देखेंगे that how the Patwari maintains all the record. The Patwari usually has ways of measuring agricultural fields. In some places, a long chain is used. In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields had been changed. अब जो हमने स्टोरी देखी थी कि रघु ने अपनी बाउंड्री ज़्यादा बढ़ा ली थी, अपनी थोड़ी ज़्यादा ज़मीन ले ली थी. अगर इस केस में हम पटवारी के पास जाते तो पटवारी इजीली मेजर कर लेता कि इनकी बाउंड्री कितनी है, और एक्चुअली वो मेजर करके देखता. अगर कुछ डिफरेंस आता तो पता लग जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in these areas. पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, अंडरलाइन दिस स्टूडेंट्स, पटवारी ही रिस्पॉन्सिबल होता है फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, और वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है कि इस पर्टिकुलर ज़मीन पे कौन सी क्रॉप ग्रो करती है. This is done from the records that are kept, and in this is why it is important for the Patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig a well somewhere. See students, this is the map. This is how the Patwari maintains all the land records like this. Patwari has divided the land into different parts like this. Farmers may change the crop grown on their field, or someone may dig a well somewhere, and keeping track of all this is work of the revenue department of the government. Senior people in this departmental supervise the पटवारी's work. किसी ने कोई क्रॉप चेंज कर दी, सपोज पर्टिकुलर ये फील्ड थी, इस पर कोई राइस ग्रो करता था. अब राइस ना ग्रो करके वो रेबी क्रॉप ग्रो करना चाहता है, या पैडी क्रॉप, या वो वीट ग्रो करना चाहता है, तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है पटवारी. अब पटवारी के भी कुछ सीनियर्स होंगे जो उसको देखते होंगे, सुपरवाइज करते होंगे उसके वर्क को. वी विल सी इन दिस पैराग्राफ. ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. अंडरलाइन दिस. सारी इंडिया की स्टेट्स किस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट्स में. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी डिवाइड किया जाता है. दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुक एक्सेट्रा. एट द हेड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस.
सपोज दिस इज अ स्टेट मध्य प्रदेश, वी कैन टेक, ये एक मध्य प्रदेश की स्टेट है। देन क्या होगा, ये मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, एक जिले में डिवाइडेड है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होगा हमारे तालुक या फिर तहसील में, इस अलग अलग नेम से बोला जाता है, तो ये तहसील। तो इस तरीके से एक स्टेट डिवाइड होती है। दे एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। नाउ दिस इज द कलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आईपीएस आईएएस सॉरी आईएएस ऑफिसर। फिर आते हैं उसके नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिसको आईआरएस बोला जाता है। फिर उसके नीचे आते हैं पटवारी, जो पटवारी करते हैं। तो ये पटवारी को कौन ऑब्जर्व करता है, ये एंड देन दिस। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क, सुपरवाइज का मीन्स होता है स्टूडेंट्स देखना। दे ऑल्सो supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificate, etc. A tehsildar's office is where land disputes are also heard. एक तहसीलदार एक ऐसा ऑफिस है, तहसीलदार के ऑफिस में सारे लैंड के जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पे सुने जाते हैं। This is of no use students, directly turn your pages. A new law, Hindu Succession Amendment Act 2005. This is important student. The year is so important that when Hindu Succession Act Amendment Act came into existence, it came in year 2005. Often when we think of farmers who own land, we think of men. जब हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं तो हम मेन के बारे में सोचते हैं। विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. पहले क्या होता था, जो भी फार्मर की ज़मीन होती थी तो वो उनके बेटों को दी जाती थी, विमेन को कोई पार्ट नहीं मिलता था। इवन फार्मर की डेथ के बाद भी वो ज़मीन इक्वली शेयर की जाती थी सन के बीच में, वुमेन का उसमें कोई पार्ट नहीं होता था। Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the country. अब इस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया, जो भी ज़मीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सन में, विमेन में और उनकी मदर के बीच में। मतलब उस ज़मीन के अब 3 हिस्से होंगे और ये सेम लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा, इंडिया के हर पार्ट में ये लॉ एप्लीकेबल होगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। सुधा सबसे बड़ी बेटी है एक एग्रीकल्चरल फैमिली की में से। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। वो उसकी शादी हो गई और वो अब नेबर विलेज में रहती है, बगल वाले विलेज में रहती है। आफ्टर हर फादर डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसकी फादर की डेथ के बाद वो अपनी माँ की मदद करने आती है उनके फार्मिंग वर्क में। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record. तो अब उसकी मम्मी जो सुधा की मदर हैं उन्होंने क्या बोला कि पटवारी के पास गई और वो पटवारी को बोला कि ये जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र कर दे सारे बच्चों के बीच में, मतलब ये जो ज़मीन है उसकी इक्वल हिस्से हो जाए और सारे बच्चों के नाम पे ज़मीन की जाए। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of land. और सुधा को ये पता है अगर आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इजीली इस लैंड के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और इस लैंड पे वो डिपेंड हो सकती है। So here our chapter ends, students. I hope you all have understood the chapter very well. Go through the chapter once again, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.